activities a person is there in his life, uh, the faculty is a very big part of his career, of his life, of his qualities, of his skills of a person, because faculties and the school and your college, because in those time you are free bird, you get trained by your faculties, you get learn so many things from them. Your school and college gives you opportunity to enhance your skill, to they correct your mistakes, and by the time when you complete your educational world and you come to the real world, so you are completely a different person because of those faculties and our school and college. So thank you, ma'am. uh, so today we have a session about entrepreneurship. Well, I would definitely like to tell you that if due to the situation we are on the virtual platform, but if it could be done in our auditorium, then that will be great. But due to the situation, we have to uh, follow like this. Okay, so now you all are, I think, in the last semester of your MCA or your education. Am I right, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. They're in the last semester. This is a part of their last semester. Okay, okay, okay. So, well, it is like now they are after, as I said, after a few months they will be in some new world and actual real worlds, because I always say that the educational world and the real world are two different things completely, because when you start it, so you feel that okay, I have learned the things, but I need to learn so many other things. But that learning of your educational world is a pillar so that you can learn more in future. So just hold on. Okay. So I'll switch over with my presentation, and I'm glad that you are here to listen something and to know about things. Can you guys see my screen? No, sir. No, it's not visible, Riddhish. Okay. Just hold on. Can you see now? No, sir. Yes, sir, it's visible. Now, Now Sir, it's now visible. it's visible. Okay. Okay. So, well, we'll discuss about entrepreneurship. But as you are in your last semester, the question is who can be an entrepreneur? Because there are a few things which requires those kind of qualities and commitments. Then you can become an entrepreneur. So uh, so let's see, because many people feel that कॉलेज में किसी को लगता है कि हाँ ये मतलब ये अदानी ने रातों रात मतलब इतना कर दिया यार, एक बार बस मेरी कॉलेज खत्म हो जाए ना, फिर देखो मैं भी क्या करता हूँ, ये अदानी का तो कोई क्लास नहीं मेरे सामने, बराबर. But the thing is like, yeah, that that dream, that passion is needed. But the thing is like, there are some qualities
and some sacrifices also, which is required to become an entrepreneur. तो सबसे पहले एक बेसिक अगर चीज मैं बताऊं कि कोई अगर आप में से किसी को ऐसा हो कि नहीं मुझे यार मतलब लाइफ मतलब क्या है, लाइफ को एंजॉय करना है, एंजॉय तो करना है डेफिनेटली, बट मुझे एकदम मतलब शांति वाली लाइफ चाहिए, मतलब एक सुबह उठूं तो एकदम शांति से मैं चाय पीऊं, वो सब है डेफिनेटली। ऑफिस जाऊं तो ऑफिस जाके तो मेरा टाइम है 10 to 7, ओके, वो मैं 10 to 7 काम करके 7 बजे निकल जाने के घर पे जाके फिर आराम से वापस घर पे जाके चाय पीने की, और फिर आधा घंटा थोड़ा रेस्ट करने का, फिर डिनर लिया, फिर बातें की, एंजॉय किया, सो गए। बस ये मतलब हाँ, ऑफिस आवर्स शुड बी लाइक 10 to 7, मतलब उसके अलावा कोई काम नहीं करना है, बराबर, कोई झंझट नहीं चाहिए और मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए। ओके, ऑफिस से निकले बात खत्म हो गई। ओके, सो वो वाला जो चीज है, सो वो आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, इट इज नॉट देयर इन द एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज नॉट लाइक दैट, बट इट कैन बी गेट व्हेन यू आर एट सर्टेन स्टेज। आपने सक्सेस लिया, आप यू ग्रोन लाइक एनीथिंग, लाइक यू हैव बिग टीम, सो दैट उसके बाद कुछ लेवल पे जाने के बाद हाँ वो चीज आती है और आ सकती है, बट फ्रॉम द डे वन आपको मतलब स्ट्रेस लेना ही नहीं है, कुछ करना ही ऐसा मतलब कि लोड लेना ही नहीं है, तो ऐसा नहीं जी। और तो ये सारी चीजें हैं। So let's see who can be an entrepreneur. Okay, so definitely that becomes the definition. What is entrepreneur? So as I discussed that how to decide to become an entrepreneur, because there are two things after educational world. In the real world, there are two things: if you become an entrepreneur or you become an employee. The employee is not a like a negative point, because many employees are like that. They are earning much more than any entrepreneur. Okay, so entrepreneurship is not related to money only. This is need to be clear in everybody's mind that it is not about money only. So what it is other than money, what it is? Money is important thing in life. Okay, but entrepreneurship, to become an entrepreneur, is not like regarding money only. There are some things, because I can tell you that there are many entrepreneurs, or most of the actual entrepreneurs are there. If you give them two options, first, what's your earning in your entrepreneurship in your business? Okay, are you earning 1 lakh per month? It's your profit. Okay, okay, I will give you a job of monthly salary 1.5 lakh. What will you do? Most of the entrepreneurs will say, I am happy with my 1 lakh. So this is the reason why they are entrepreneur. Otherwise, they could have also those kind of job. And even in the same case is there with the employee. If you ask who doesn't want to go for entrepreneurship, if you give them two options in same way, but vice versa, that you are going to get a salary of 1 lakh per month, and there is another option, I have one ready business, just take over, you will earn 1.5 lakh monthly. You will say, sorry boss, I am happy with my 1 lakh. I will do my job. So these are the things. But then definitely there is a question then, why entrepreneurship? Why people goes for that? So let's see what qualities an entrepreneur should have. These are the things should be there in mind. First of all, I sacrifice my other things in my life, because इसमें sacrifice करना पड़ता है. Initially when you start something, आजकल startup की बातें करते हैं. Okay, when you start something, it's not like कि हाँ हमने शुरू किया, मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे. In entrepreneurship, you are 24/7 on toes. You cannot say on Sunday if your client calls, not initially, even after some time, if your client calls you on Sunday noon 2:30 p.m., you cannot
Tell him that, boss, it's a Sunday, don't call me. See, this is India still. I'm frankly telling you, this is India. You cannot say. It may be possible in America or something that okay, somebody calls at noon of Sunday or even in weekend, they will tell. But even there also, many entrepreneurs will not say bluntly to the client. So you have to sacrifice many things initially. You have to work. First of all, you have to, if it is required, you have to work on weekends also. I have done initially for many years. I have done on weekends. So there was like at that time even see you will complete your education and after some time you get married also. So at that time you have to spend some time for your life partner. So at that time it is in this is a kind of sacrifice. At that time even your life partner saying that what is this? You are always working on weekend and all. So there is a sacrifice. You if there is some function of your family, okay, and if you are in a job, you can take leave. Whatever if there is some important meeting or some important thing is there, in advance you if you ask for the leave or in advance or 1 month advance, you can go for it. But in entrepreneurship, even if you have planned everything before 1 month, and even 2 3 days back before, if some big client come to you or you have clicked that, and there is a final meeting, so at that time you have to go there. If the client is insisting to meet on that day at that time, so there is no option. So this kind of sacrifice. So that's why there should be something that I sacrifice. I'll sacrifice. I'll do my best. Whenever it is required, I'll be there for my company, for my business. Okay, I'll work hard. Whenever it is required, if my friends are doing party, okay, but my client has called me at that time, okay, I'll be there. If I need to deliver something on the next day, okay, I won't attend my friend's party. It has happened. And I will work with my passion. And it's nothing like you have to work like a labor. Okay, definitely you have to use your smartness. Otherwise, even if you work like a labor, you cannot manage everything. Yes, you will have a team, you will hire people, but you have to work with a smartness. That how you can utilize your team, your resources, your planning, okay, your schedule. And the fourth point is I am professional. You have to work like a professional. If you have tell your client that okay, I'll deliver on this date, so you have to, because that person has put a trust on you that this guy will deliver me on this day. So we will start our next task, which is depends on his delivery on the next day. So now imagine if you have एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि शादी में बारात में बैंड बाजा वाले होते हैं हमारे बारात का टाइम फिक्स होता है ओके समझो कि शाम को 6 बजे बारात शुरू होगी 7 बजे अंदर पहुंचना 1 घंटे का बारात बहुत ही बिंदास मतलब एक बहुत जलसा वाली बारात की बराबर 1 घंटे का टाइम रखा है अभी आप सोचो अगर वो बारात वाला 7 बजे आए 6 बजे नहीं पहुंच पाया बहुत वर्कलोड है वसंत पंचमी का दिन है बहुत वर्कलोड है इधर गए उधर गए ट्रैफिक में फंस गए बीच में 7 बजे वो पहुंचा क्या करोगे आपका वो 1 आवर का प्लानिंग का क्या हुआ अभी सामने मुहूर्त है 7 बजे अंदर जाना है अभी 6:55 को वो आया बारात वाला क्या करोगे यू विल बी डिसअपॉइंटेड लाइक एनीथिंग तो वो उसका उसका वो डिलीवरी का टाइम था कि 6 o'clock यू नीड टू बी देयर तो अगर नहीं आया तो आपका पूरा आगे का प्लानिंग बिगड़ सकता है और बिगड़ेगा ही
ये एक आप सोचो, एक अगर 12 वाले का टाइमिंग का, एक उसका डिलीवरी का इतना इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर आप चाहो तो थोड़ा आगे 19-20 कर भी सकते हो, बट देयर इज नथिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल। बट जहां बिजनेस की बात होती है, आप जो डिलीवर करने वाले हो उससे आगे आपका जो क्लाइंट है उसका कुछ और प्लान है, उसको आगे कुछ और डिलीवर करना है जहाँ पे फाइनेंशियल मैटर्स इज इन्वॉल्व। तो उस टाइम पे उसकी सिचुएशन क्या होगी? वो प्रोफेशनलिज्म जो है वो आपको देना पड़ता है। फिर द नेक्स्ट थिंग इज आई एम बिल्डिंग माय एम्पायर। ये एक ना, ये एंटरप्रेन्योरशिप में एक चीज होती है कि मुझे मेरा कुछ एम्पायर बनाना है, मेरी कंपनी करनी is regarding that. So when I told you that it is not related to only money, तो ये चीज है कि मुझे ये सिर्फ पैसे की बात नहीं होती है एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ मुझे मेरा कुछ एम्पायर बना, मेरी टीम है ये मेरे बंदे हैं, ये मेरी टीम है, ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरा काम है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये हमने किया है। आज मैडम ने मेरी बायोशीट में बोला, ओके ये क्लाइंट है, I can tell that okay, this is my client. I am Ahmedabad is my client. So वहां पे डेफिनेटली वो क्लाइंट लाने में और वो मेंटेन करने में बहुत मेहनत लगती है। You everybody knows what is Ahmedabad, how professional they are and how they are like for quality, how strict they are. They are known for it in all over the world. So ये चीज है। Even for at Statue of Unity, it may possible many of you have visited there before this pandemic. So even in weekends, there are 32,000 people every weekend, and on working days, 10,000 people. My people are there to manage the things. तो उसमें उनके ऊपर जो है वो कलेक्टर साहब है, IAS ऑफिसर्स है, जिनको हमें भी आंसर करना होता है इन दिस केस। और जहाँ पे पीएम प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्ट नजर है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, तो उस केस में इवन वी हैव टू गिव अवर आंसर। तो ये एक खड़ा करने में आई कैन टेल, आज मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये मेरा है, ये मेरे बंदे है, ये हमारा क्लाइंट है, ये हमने किया है। तो वो फील जो है वो आपको अगर चाहिए, वो आपको अगर लेनी है कि मेरा एम्पायर है, तो वो चीज एंटरप्रेन्योरशिप की एक क्वालिटी की बात है। एंड आई एम द मास्टर ऑफ माय डेस्टिनी। डेफिनेटली जो होगा, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इन योर जॉब। इफ समथिंग हैपेंस, चलो ये पैंडेमिक आया, कंपनी बंद हो गई, ले ऑफ किए कुछ लोगों को, आपकी जॉब चली गई, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप वहां पे बोल सकते हो कि इसमें ऐसा हुआ, कंपनी बंद हो गई, जॉब चली गई, तो इसलिए अभी इनकम नहीं है। बट इन एंटरप्रेन्योरशिप, whether you are earning or not, you are responsible. Whether you are growing or not, you are responsible. Okay, and that's why if you have this kind of things, then and then you can say that yes, I am an entrepreneur. Okay, so in entrepreneur, it is always like that person converts frustration into excitement. कभी कभार बहुत चीजें होती है, बहुत काम होता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मतलब ये क्या है यार, मतलब ये करूं तो वो चिल्लाते हैं, उस उनका करूं तो ये बोलते हैं, फिर दोनों का करूं तो कुछ तीसरा ऊपर से आ जाता है। व्हाट इज दिस? तो ऐसी सिचुएशन में जिसको एक्साइटमेंट आता है कि हाँ यार ये खत्म किया, वापस जिसको ये बात को हंसी में ले गए, यार इनका जैसे ही किया ना, तुरंत वहां से भी कॉल आया, अरे ये मेरा ये बाकी है, वो बाकी है, अरे वो भी मैंने कर दिया। जैसे आप यार सिचुएशन देखो, दोनों का किया, ऊपर से कुछ और टपक गया, तीसरा आया कि अरे अभी तो ये इश्यू खड़ा हुआ, अभी इसको सॉल्व कर लो। तो इसको एज ए एंजॉय जो करता है
वो फ्रस्ट्रेशन को जो एक्साइटमेंट में कन्वर्ट करके जो इसको एंजॉय कर सके, वो जरूरी है। दैट पर्सन इज एंटरप्रेन्योर। तो स्ट्रेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर। कई बार जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस क्यों होता है? ओके, एनीबॉडी कैन टेल मी? वर्कलोड। एग्जैक्टली, वर्कलोड क्यों होता है? व्हेन डेडलाइन कम्स टू नियर, मतलब डेडलाइन बहुत नजदीक आ जाता है। हाँ, डेफिनेटली When डेडलाइन किस चीज का होता है? pending works increases. सॉरी? When the pending works increases. Yes, yes, pending works increases. Can we remove that word pending? When So when, work, so may I? yes, So when we have planned something that this particular work should be completed in this many spans of time, and when we hmm, fail to do so, we may feel frustrated and stressed. yes, okay. So, uh, as you have seen that कि आपने जो जो की पॉइंट्स बोले, ओके, उसमें एक बात आती है कि वर्क, whether it's a pending or not, whether it's a new or not, डेडलाइन नजदीक है किस चीज की? वर्क की, कोई टास्क की। तो मतलब कि आपके पास काम है, काम है तब जाके ये स्ट्रेस की बात तक पहुंचा हूं। काम है मतलब बिजनेस है। ओके, आई हैव सम वर्कलोड, आई हैव सम स्ट्रेस बिकॉज ऑफ सम वर्कलोड, दैट मींस माय बिजनेस इज रनिंग एंड इट्स ग्रोइंग। वो काम है मतलब काम बड़ा है, इसलिए वो स्ट्रेस आया है। Even if we talk in the sense of IT industry, okay, तो चलो एक आईटी कंपनी है, उसमें प्रोजेक्ट आए तो एक डेडलाइन, चलो 3 प्रोजेक्ट की डेडलाइन एक साथ नजदीक आ रही है, और अपने पास जो रिसोर्सेज है उसके हिसाब से वर्कलोड हम कह सकते हैं कि ये अभी वर्कलोड है, तो एक्स्ट्रा काम करके भी वो खत्म करना। बट सी द पॉजिटिव थिंग, आपके पास 3 प्रोजेक्ट है, इसलिए वो आपको स्ट्रेस लग रहा है अभी। आप सोचो प्रोजेक्ट ही नहीं होते तो, प्रोजेक्ट होते ही नहीं तो स्ट्रेस नहीं होता। नेगेटिव स्ट्रेस आ जाता है, ये थोड़ा Right, sir. पॉजिटिव रहेगा। एग्जैक्टली, नेगेटिव स्ट्रेस आएगा, बट वो जो ये जो स्ट्रेस है, मतलब हम वही बोल रहे हैं कि अभी जो स्ट्रेस जो आता है, स्ट्रेस को जो अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। ओके, तो स्ट्रेस आया है, दैट मीन्स आपको, आपके पास वर्कलोड है, मतलब कि आपके पास काम है, आपके पास प्रोजेक्ट्स है जो आफ्टर ऑल आपके ग्रोथ में और आपकी इनकम में कन्वर्ट होने वाला है। तो द पर्सन हु कन्वर्ट्स दैट स्ट्रेस इनटू अपॉर्चुनिटीज, उसको खत्म करके अब इस चीज को क्या करेगा? कोई ऐसा होगा ना मार्केटिंग वाला बंदा जो एंटरप्रेन्योर होगा, वो क्या करेगा? 3 क्लाइंट का काम चल रहा है, चौथे क्लाइंट से ऐसे इसी तरह से कुछ बात करेगा, एंड जिसके बारे में, जिसके साथ पहले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात हुई है, तो उनको बोलेगा कि ये सर, हाँ सर, डेफिनेटली हम देख लेंगे, बट सर थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, कैन वी स्टार्ट आफ्टर 1 मंथ और कैन वी डिस्कस अबाउट इट आफ्टर 1 मंथ, बिकॉज अभी मेरे 3 प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका डेडलाइन है, तो एंड आई एम सो स्ट्रिक्ट अबाउट माय डेडलाइन, वो मुझे खत्म करना है और ये 3 प्रोजेक्ट है तो वो मुझे करना पड़ेगा। तो सामने वाले बंदे को क्या दिखा उसमें कि हाँ, मतलब ये इज सो कमिटेड टू हिज डेडलाइंस, और उसके पास 3 प्रोजेक्ट है, मतलब ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, उसको 3 प्रोजेक्ट ऐसे तो नहीं मिले होंगे, मतलब ये बंदा कर सकता है। तो ये चीज उस स्ट्रेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर देगी। सो दिस इज द थिंग, एंड अदर थिंग इज लाइक एडिशन, इनोवेशन एंड चेंज आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्रेस। तो मतलब आज आपको एक एंटरप्रेन्योर को क्या करना है कि आज जो कुछ भी चल रहा है, आज जो कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें हम और आसानी से कैसे पूरा काम कर सके, इस सारे टास्क को रैपिडली कैसे खत्म कर सके, जो रेगुलर रहता है। अगर कोई समझो कि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ओके,
Can you see me now? Yes sir, we can. Okay. Yes, sir. अगर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बराबर, तो उसमें क्या है कि मतलब लाइक आपको आप कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या करोगे जिससे ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इजी हो जाए. यू नीड सम रॉ मटेरियल्स आल्सो. तो क्या हो जाए, क्योंकि हर टाइम में थोड़ा प्रोडक्शन होता है, फिर बाद में रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, वापस ऑर्डर दो, उसमें वापस डिले होता है, प्रोडक्शन यहाँ पे रुक जाता है. तो क्या कर सकते हैं कि स्मूथली हो जाए. देन यू हैव टू थिंक अबाउट कि मतलब क्या कर सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग फास्ट हो. अभी तक मैं एक हफ्ते में मैं इतने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, एक्स यूनिट बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ जिससे मैं एक हफ्ते में एक्स प्लस वाई यूनिट बना सकूं. तो ये सारी जो चीजें हैं, तो वो उसको जब ये प्रोसेस चल रहा है तो एंटरप्रेन्योर के दिमाग में ये सब चलता होना चाहिए कि ये कैसे इम्प्रूव किया जाए. और ये जो पूरा मेरा काम चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, ये अभी जो सेटअप है, उसमें किस तरह से ये सिक्योर वे में हो कि जिससे मेरे बंदों को कोई नुकसान ना हो, कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कुछ एक्सीडेंट हो जाए. तो अगर ऐसा ना हो उसका मैं और कैसे ध्यान रख सकता हूँ. सो इन सब के ऊपर जो विचार करता है, जो उसका प्लान करता है, इम्प्लीमेंट करता है, सो दैट इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर. ओके. Yes, sir. Anybody has, we will discuss in the later about any questions. Okay, ये थोड़ा but if you have anything to understand, you can ask me in between. Okay. Now I'll say another thing is like idea generation and innovation. Let's hold on. Can you see the screen? yes, sir. Okay. So idea generation और innovation. अब हम बात करते हैं कि ये इनोवेशन जो है, तो इनोवेशन ऐसी चीज नहीं है कि मतलब हमेशा कोई टेक्निकल चीज में ही हो. ओके. ऐसे जरूरी नहीं है कि मतलब कोई लाइक कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस में कुछ इनोवेशन किया, कोई नया गैजेट बनाया, वही इनोवेशन होता है, वो नहीं. हमने अभी जो डिस्कस किया कि करंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपके करंट प्रोसेस में आप क्या कुछ नया कर सकते हो कि जिससे आपका प्रोसेस इजी हो, स्पीडी हो और इम्प्रूव्ड हो. दैट इज आल्सो कॉल्ड इनोवेशन. दूसरी बात है आइडिया जनरेशन की. एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक आप क्या करोगे, मतलब किस चीज का बिजनेस. एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस. तो आप किस चीज का बिजनेस करोगे, क्या करना है. तो दैट इज ऑलवेज लाइक, हाँ मतलब आप कैसे किस चीज का बिजनेस करोगे, तो वो ऑब्वियसली वो आइडिया पे है. अभी आइडिया आपको क्या आ सकता है कि मतलब if it is regarding IT, then you would like to go in a product based or service based. तो क्या करना है, अगर प्रोडक्ट बेस्ड जा रहे हो तो कौन सी प्रोडक्ट बनाओ. तो उसका आइडिया की जो बात है वो आपके दिमाग में आए, कुछ आइडिया हो कि हाँ एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए तो जो लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व करे. सो वी आर मेकिंग वन सॉल्यूशन. बट आपको प्रॉब्लम पता होगा तो सॉल्यूशन ले पाओगे ना. तो वो आपको वो पता होना जरूरी है कि आपके लोगों का प्रॉब्लम क्या है. आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, देन
यू हैव सम आइडिया कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या इस चीज को इस तरह से ये प्रॉब्लम हम दूर कर सकते हैं, तो आपने उस पर वर्क किया, इम्प्लीमेंट किया, तब जाके लोगों को उसका सॉल्यूशन मिला, देन यू डोंट नीड टू डू मार्केटिंग दैट, मतलब लाइक बहुत ही मतलब वो हाई लेवल का मार्केटिंग करना पड़े, जो मार्केटिंग के ऊपर से आपका बिजनेस चले, ऐसा नहीं हो, ऑटोमेटिकली वो ग्रोथ कराएगा। तो एक आइडिया जनरेशन इज इम्पोर्टेंट। नाउ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, एंटरप्रेन्योर को क्या होता है कि भाई एक आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने बनाया, आपके पास टीम है, तो चलो वो लोग भी काम कर रहे हैं, so whenever you get some time, so you are also involved in projects or with the client, but whenever you get some time, तो आपको ये सोचना है कि मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या बराबर चल रहा है, यू हैव टू टेक अ लुक ऑन दैट, ओके एवरीथिंग इज गोइंग ऑन परफेक्टली, ओके गुड, कहाँ पे मतलब क्या मेरा परफेक्ट चल रहा है, ओके तो वो परफेक्ट चल रहा है कि नहीं वो भी चेक करना जरूरी है। तो आप मतलब हर टाइम सिर्फ क्लाइंट साइड और हर टाइम सिर्फ मार्केटिंग साइड आप देखते रहो, वो जरूरी नहीं है। हाँ वो आप करते हो, बट फिर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी देखना है। सी दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉई एंड एंटरप्रेन्योर। अगर कोई एम्प्लॉई है, एक मार्केटिंग मैनेजर है, तो उसको क्या देखना है, बस मार्केटिंग करना है, कंपनी का मार्केटिंग करना है, उनकी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है, उनकी सर्विस का मार्केटिंग करना है और नए क्लाइंट्स लाने। उसका एक ही गोल होता है और ही फोकस ऑन दैट ओनली। बट एंटरप्रेन्योर का क्या है, उसको मार्केटिंग भी करना है, क्लाइंट भी लाना है, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनके साथ भी डील करना है कि उनके कोई क्वेरी है, कोई कंप्लेन है, वो भी देखना है, और खुद के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी देखना है रिगार्डिंग इफ एनीथिंग इज रिगार्डिंग टू योर टीम और एम्प्लॉइज, वो सब कैसे काम चल रहा है, टाइमली डिलीवरी हो रही है नहीं, तो उस टाइम पे आपको ये सब भी देखना है। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एन एम्प्लॉय। तो क्या परफेक्ट चल रहा है वो देखा आपने, वेयर द चेंज इज रिक्वायर्ड, मतलब आप जब देखोगे, चेक करोगे कि सब परफेक्ट चल रहा है, क्या चल रहा है, तो आपको आइडेंटिफाई होगा कि नहीं ये इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, हम इस तरह से काम करते हैं तो ये आउटपुट बराबर नहीं है। या फिर इफ आई कैन टेल यू फॉर एग्जांपल कि चलो अगर एचआर की बात करें तो एचआर में है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, नए बंदे आते हैं तो उनका उस टाइम पे हम ऑनबोर्डिंग करते हैं, सब प्रोसेस करते हैं, फिर बाद में हम दूसरे काम में लग जाते हैं, तो उनका जो रेगुलर चीज है कि उनका आईडी कार्ड बनाना वो सब, तो कभी कभार रह जाता है, या उनका हमारे पोर्टल में उनका लॉगिन क्रिएट करना, तो वो कभी रह जाता है। जब वो कंप्लेन करते हैं या मांगते हैं कि मेरा ये अभी तक आई कार्ड नहीं आया है, मेरा इंश्योरेंस का वो कार्ड नहीं है, वो कब मिलेगा मुझे, तो सी दिस इज नाउ यू शुड आइडेंटिफाई कि ओके यहाँ पे भी चेंज करने की जरूरत है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है, वी नीड टू प्लान एंड हमें एक प्रोसेस बनानी पड़ेगी। हाँ कि हाँ ये काम है तो ये इसका प्रोसेस है that need to be followed by every employee of your company, कि वो काम जो हैंडल कर रहा है उसके पास वो प्रोसेस होनी चाहिए, प्रोसेस चार्ट, कि आप पहले ये करोगे, इसके बाद उनका ऑनबोर्डिंग हुआ, ऑनबोर्डिंग करने का है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट लिया, आपने डॉक्यूमेंट लिया, ऑनबोर्ड किया उनको, उनके कंपनी में जब ज्वाइन हुए वो इंट्रोडक्शन करवाया, फिर उनके आई कार्ड के लिए भी प्रोसेस स्टार्ट कर लिया, तो ये पूरा प्रोसेस चार्ट है, तो ये आपको फॉलो करना है। तो ये सब चीजें भी आपको फोकस करनी पड़ेगी, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड योर कंपनी फ्रॉम द जीरो। तो उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब जो एम्प्लॉय होंगे वही सब खुद ब खुद करेंगे, अगर ऐसे ऐसे हाँ आपको लाना है ऐसे कि वो आप खुद आइडेंटिफाई करके वो इम्प्रूव करे, बट जरूरी नहीं है।
आपको तो देखना ही पड़ेगा. So this is how you identify when the change is required. Then the third point is on which area you need to focus more. आपके अलग अलग सेक्शन में काम चल रहा है तो, और आपके सर्विस या प्रोडक्ट अलग अलग इंडस्ट्री में बिक रही है तो, या आपकी सर्विस और प्रोडक्ट अलग लोकेशन पे भी बिक रही है रीजनल वाइज. आपके अगर आईटी में अगर एक प्रोडक्ट बनाया आपने, सो दैट प्रोडक्ट इज नॉट फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्री, तो हर इंडस्ट्री में चलता है. दैट ऐसी आपने एक प्रोडक्ट बनाई, तो आप जब आप सेल कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, मार्केटिंग के बाद थोड़ा सेल्स भी होता है. यू नीड टू सी मतलब ये कहाँ पे मतलब मुझे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है. वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकोगे? देयर आर टू थिंग्स. वन इज, एक तो जहाँ पे कुछ आपका सेल हो ही नहीं रहा, आपकी टीम या आप काफी कोशिश कर रहे हो बट वो इंडस्ट्री में सेल हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है कि क्यों नहीं हो रहा, क्या गैप है, उनको क्या चाहिए और हमारे प्रोडक्ट में क्या नहीं है. तो ये एक फोकस की चीज है. दूसरा, ऐसा जरूरी नहीं कि जहाँ पे नहीं चल रहा वहीं पे फोकस करना है, जहाँ पे चल रहा है नहीं करना. जहाँ पे आपका सेल ज्यादा हो रहा है आप वो भी आइडेंटिफाई करो कौन सी इंडस्ट्री में मेरा सेल ज्यादा हो रहा है. तो अगर पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री है, जैसे कि आप फार्मा इंडस्ट्री में आपका ज्यादा सेल हो रहा है कंपेरेटिव टू अदर इंडस्ट्रीज, then you need to focus on that also. कि यहाँ पे फोकस करके यहाँ पे और ज्यादा जोर लगा के मैं ज्यादा सेल करूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे बिक रहा है. अगर फोकस नहीं करोगे तो अगर 100 स्केल का सेलिंग है तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ के 110 होगा, 115 होगा. पर अगर आप उस पर फोकस करोगे, आपको लग रहा है कि यहाँ मतलब हाईएस्ट सेलिंग आपका फार्मा इंडस्ट्री में है और आप वहां पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली 150 के स्केल तक पहुंचेगा. सो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज पे आपको फोकस करना है. एंड द फोर्थ थिंग इज हाउ फाइनेंस इज बीइंग मैनेज्ड एंड शुड बी. मतलब अभी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तो उसमें फाइनेंस इज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग. मैं आपको एक बात बता दूं कि लाइक बिजनेस में मेन डिसिप्लिन इज फाइनेंशियल डिसिप्लिन. ये जो पूरा चल रहा है, ये जो पूरा तंत्र चल रहा है वो उसी पे चलता है. मैंने बात बताई थी कि मनी इज नॉट ओनली थिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. या दैट्स ट्रू. मैं रीजन के बारे में बताया कि वो एक रीजन नहीं है, सिर्फ अकेला रीजन नहीं है, बट whether it's you are employee or entrepreneur, money is there. तो अगर आपने अच्छा फाइनेंस लेके भी आप चला रहे हो बट अगर वो एक सिस्टमेटिक वे में नहीं आपका फाइनेंस घूम रहा है, आपका पैसा है वो अगर सिस्टमेटिक वे में नहीं घूम रहा है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है. अभी प्रॉब्लम होगी ना तो सिचुएशन कैसी होगी, पैसा है फिर भी पैसे का प्रॉब्लम. और ये चीज ना शुरुआत से आपको करनी पड़ती है. लेट मी गिव यू माय ओन एग्जांपल, जिसमें मैं आपको आई कैन टेल यू कि मतलब कुछ कभी कभार हम ऐसे गलती करते हैं. तो इनिशियली इवन मैंने जब स्टार्ट किया तो उस टाइम पे भी हमारा फोकस होता है कि हाँ चलो हमने हमारी कंपनी स्टार्ट की है, हमारे अभी हम टीम बिल्ड करेंगे. टीम बिल्ड करने के बाद ओके हम कौन सी सर्विस पे काम कर रहे हैं वो देखेंगे. फिर उसके बाद हम क्लाइंट पे फोकस करेंगे, मार्केटिंग पे करेंगे. तो उस टाइम पे क्या है कि व्हेन यू आर लाइक सेनापति, आपकी सेना के सेनापति हो, तो यू आर फोकसिंग ऑन ऑल थिंग्स. उस टाइम पे आपको आपने फाइनेंस जो डाला हुआ इन्वेस्ट किया है तो उसको रोटेशन पे भी इतना ध्यान देना जरूरी होता है. पर कभी कभार होता है कि आप नहीं ले पा रहे बिकॉज यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर क्लाइंट, ऑन योर मार्केटिंग. बिकॉज आपको लगता है कि अगर अभी क्लाइंट मिल जाए तो पैसा ऑटोमेटिकली आएगा, तो मतलब काम पे फोकस करो. मैंने एक गलती की थी बीच में इनिशियली कि आई वाज नॉट फोकस्ड ऑन माय फाइनेंस.
तो उसमें क्या होता है कि आपको काम मिलता है, काम आता भी है, बट वो पैसे का रोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समाव क्या होता है कि आपके पास सिचुएशन कभी ऐसी आ जाती है कि आपके पास पैसा है पर पैसा कहीं पे स्टक है, कहीं पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपने उस पर फोकस नहीं किया, काम नहीं किया, तो उस वजह से सिचुएशन ऐसी है कि मतलब आपके पास अभी हाथ में पैसा नहीं, एंड यू हैव टू थिंक लाइक कि आप क्या करें। सो ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं मेरा खुद का एग्जांपल बता रहा हूँ कि आई वाज मतलब लाइक मुझे जितनी फंड की जरूरत थी, आई कैन टेल यू, मेरा उससे 10 गुना से ज्यादा, अराउंड 12 टाइम्स माय मनी वाज स्टक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिफरेंट लेवल्स मार्केट में। तो मेरा पैसा है, मैंने जनरेट किया हुआ है, बट मैंने वहां पे फोकस नहीं किया, वहां पे प्रोसेस नहीं किया जहां से मुझे पैसा मेरा लेना है। मैंने जो काम किया वहां पे मैंने वो फॉलो अप नहीं किया उतना रिगरसली, इस वजह से मेरा फंड वहां पे स्टक है। वो पैसा मेरा ही है, अभी मुझे एज पर एग्जाम्पल 50,000 की जरूरत है और पर मेरा 7 लाख 8 लाख तो उधर पड़ा है। I'm telling you as per the example figure, तो आपको रिलेशन बैठेगा कि कहाँ 50,000, कहाँ 7 लाख 8 लाख, वो है पर आपके पास नहीं है क्योंकि आपने उस पर फोकस नहीं किया। आपने उसके फोकस करके आपने उसमें एक सिस्टम में नहीं डाला, आपने वो प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए एक स्टेज ऐसा आ गया कि पैसा होने के बावजूद पैसा नहीं। So at that moment I learned that thing, then I focused completely on finance, जिसमें मतलब बिजनेस डेवलपमेंट साइड थोड़ा ध्यान कम करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे फोकस करना जरूरी था। वो किया, थोड़ा सिस्टम में लाया, फंड वापस लाया, तब जाके आपको शांति होगी। सी सो ये जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इनिशियली आपका होना जरूरी है। अगर वो होगा तो आपको बहुत ही स्मूथली चलेगा। इवन समटाइम व्हेन यू वांट टू ग्रो, मतलब आपको और ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और ज्यादा करना है, आपको टीम बढ़ानी है या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो आपके पास पैसा हाथ में होगा, देन यू कैन थिंक अबाउट इट। अगर नहीं होगा तो आपको, अगर आइडिया आएगा, सोच आएगी, पर आप सोचो कि अभी तो कैसे कर सकते हो, तो एक बेकार की बात है, अभी छोड़ो। आपके पास पैसा है फिर भी ऐसा होगा। ओके, सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज necessary, and I'll rather say financial discipline is must. Okay, now ये चेंज करने में थोड़ा रहता है। ओके, now next point is entrepreneur is a leader। मैंने अभी बताया आपको कि आप आपकी सेना के सेनापति हो। ओके, तो एंटरप्रेन्योर गिव्स डायरेक्शन टू द टीम। आप डायरेक्शन देते हो कि आपकी टीम है, आपको मार्केटिंग वाले बंदे हैं, प्रोडक्शन वाले हैं, प्रोसेस वाले हैं, तो आपको उनको डायरेक्शन देना है कि अभी आपको क्या करना है। मार्केटिंग वाला बंदा है तो यू हैव टू गिव डायरेक्शन टू हिम, मतलब आप कौन सी साइड पे फोकस ज्यादा करो मार्केटिंग के लिए, क्योंकि आपने कुछ सोच के आपने कंपनी शुरू की है, आपने कुछ सोच के आपकी प्रोडक्ट बनाई है या सर्विस का स्ट्रक्चर बनाया है, तो उसमें आपके पाथ पे कहाँ जाके किस तरह से कहाँ पे ज्यादा काम करके कहाँ पे ज्यादा फोकस करके आप ग्रो कर सकोगे, तो आपने सोचा हुआ है। तो यू हैव टू गिव डायरेक्शन टू योर टीम कि ऐसे करो, यहाँ पे मार्केटिंग ज्यादा करो। तो इस तरह की बात है। गिव्स रिसोर्सेज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी टीम को सारे रिसोर्सेज दो। आप बंदे हायर करो, लो, फिर उसको रिसोर्सेज दो। अगर आप बोलोगे कि एक सिंपल एग्जांपल दूं कि आपका भी कुछ काम है, अगर किसी काम की वजह से आपके एम्प्लॉय को आउट ऑफ सिटी जाना है, और अगर आप उसको बोलोगे कि मतलब अहमदाबाद से उदयपुर जाना है,
अगर आप उसको बोलोगे कि नहीं ये भाई आप अपनी तरह से जाओ तो जाके करो, तो डेफिनेटली वो सोचेगा कि सर मैं कैसे जाऊँ, मतलब मैं चला जाऊंगा कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट मुझे वहाँ वहाँ जाने आने जाने का टिकट का तो खर्चा दो। ये बेसिक चीज है, वो मांगेगा। और अगर वहां पे जाके 5 जगह पे अलग अलग जगह पे मिलना है, तो अगर मानो कि वो यहाँ से किसी तरह से कोई अ, जैसे कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में भी जाके गया, देन वहां जाके वो कैसे करेगा मैनेज? फैक्ट्रीज में मिलना है, अभी फैक्ट्रीज में फैक्ट्री वाले एरिया में रिक्शा भी नहीं होती। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आप उसके पास स्किल है, उस स्किल को यूटिलाइज करना है, तो यू नीड टू गिव रिसोर्स। क्योंकि फिर बाद में वो वहां जाके वो फ्रस्ट्रेट होगा, वो उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होगी। वहां पे जाके वो एक कंपनी में एक फैक्ट्री से मीटिंग करके बाहर निकला, अभी अभी दूसरी 4 फैक्ट्री में मीटिंग करनी है वो एरिया में, पर थोड़ा दूर है, तो अभी उसका एनर्जी वो कोई ऑटो या टैक्सी ढूंढने में या वेट करने में कि हाँ मेरी टैक्सी ऊबर आ रही है, वो सारी चीजों में अगर वो स्पेंड करेगा, तो डेफिनेटली वो आपके चलो सेकंड मीटिंग में चलो वो थोड़ा भी पॉजिटिवली काम करेगा, थर्ड एंड फोर्थ को भी वो ऐसे ही इतना देगा, क्योंकि उसके पास वो एनर्जी, वो पैशन वो रही नहीं उस दिन के लिए, वो सारी बेकार सी चीजों में चली गई। तो यू हैव टू गिव रिसोर्सेज, एनीथिंग यू कैन यूटिलाइज इट। ओके, थर्ड इज इन हाउ मच टाइम who need to reach where and how। कोई टास्क दिए हैं, हाँ, जैसे आपका प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट में कोई आप सॉफ्टवेयर बना रहे, कोई ऐप बना रहे, तो उसके लिए टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जैसे करते हो कि डेडलाइन होती है, कितने टाइम में क्या करना है और कैसे करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन कैसे लाना है, वो डायरेक्शन आप दे सकते हो। देन द मेन थिंग इज स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस हर एक को करना चाहिए, वो एंटरप्रेन्योर खुद को भी करना चाहिए और उसकी टीम को भी करना चाहिए। एंड एंटरप्रेन्योर में एक एडिशन चीज वो हो जाती है कि स्वॉट एनालिसिस उसको खुद का तो सही, उसकी टीम का भी, उसको खुद को भी करना पड़ता है। देन एंड देन ही कैन थिंक एंड ही कैन टेक अ डिसीजन कि मतलब कौन सा काम किससे करवाऊं तो बेटर रहे। सो ये स्वॉट एनालिसिस जो है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, वो उसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने कई बार नहीं सुना होगा, तो वो चीज भी जरूरी है। ओके, नाउ सी एंटरप्रेन्योर प्रोसेस में है कि प्रॉब्लम होता है, आइडेंटिफाई करना, जो हमने बात की उसका सॉल्यूशन लाए, ये थोड़ा एक समरी है। आपको ये सब करने के बाद एक आपने ये सब सोच लिया, जो मैं ये सब जो आपने एंटरप्रेन्योरशिप की बातें की वो आपने सोच ली, हमने डिस्कस की, फिर बाद में आप ये कर रहे हो, उसके बाद क्या आएगा? अब आप शुरू करना है तो आपने कंपनी नेम यू नीड टू आइडेंटिफाई। अभी आजकल क्या है, कंपनी नेम आप सोचने से पहले आपको ये देखना पड़ता है कि डोमेन अवेलेबल है कि नहीं, बिकॉज यू हैव टू मेक अ वेबसाइट। ये आजकल विजिटिंग कार्ड से ज्यादा थोड़ा वो इम्पोर्टेंट हो गया है, तो वेबसाइट में भी आपको नाम रखना है, तो डोमेन अवेलेबल है या नहीं। कई कबार होता है किसी को नाम रखना है तो डोमेन अवेलेबल ही नहीं है, तो कई कबार उसको फिर नाम चेंज करना पड़ता है। तो अभी एक चीज है डोमेन अवेलेबिलिटी। देन आफ्टर डिसाइड योर नेम, देन गो फॉर लोगो डिजाइनिंग, जो अच्छा होना चाहिए वो जरूरी है। इंप्रेसिव लोगो में भी काफी चीजें हैं, वो टेक्निकली यू नीड टू सी, मतलब लोगो इज नॉट लाइक ऐसे ही बना दिया, उसका भी रीजन होता है, कलर का भी मीनिंग होता है, कलर का इंप्रेशन का भी मीनिंग होता है, तो वो कैसा डिजाइन किया है, कैसा दिखता है, वो भी एक है। आप टाटा का लोगो देखो और आप लेम्बोर्गिनी का लोगो देखो, आपको आइडिया आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है। लोगो में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, लोगो लोगो डिजाइनिंग है, कंसेप्ट में, तो आपको किस तरह से जाना है, ये सब चीजें, आपका वेबसाइट और वो सब है। आपको कंपनी बनाने के लिए गुमास्ता रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, हमें प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एंड नाउ फॉर लास्ट 3 years वी आर इनटू जीएसटी आल्सो, तो वो भी आपको करना रहता है। ओके, सी एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर्स 3 aims। ओके, मनी, मशीन एंड मैन पावर।
हमने इनके बारे में बातें की. मनी, I said main discipline is financial discipline. Okay, कलेक्शन करना जरूरी है. You have to focus on that. मैंने मेरा एक्सपीरियंस बताया आपको. ओके, क्योंकि इसमें क्या है, कलेक्शन में अगर आप कलेक्शन में फॉलो नहीं लोगे, आप रेगुलर नहीं रहोगे, आपके पास फंड आएगा नहीं. बट आपके भी सप्लायर है जो आपको सप्लाई करते हैं, वो आपके ऑफिस पे आके बैठेंगे कि सर मेरा पैसा, तो सिचुएशन इज लाइक कि पैसा है फिर भी नहीं है, मैंने बताया सर. ओके, फाइनेंशियल कैश फ्लो प्लानिंग फॉर 18 मंथ्स. ये थोड़ा थियरी इसके पीछे कि मतलब आपको, आप कंपनी शुरू कर रहे हो तो उसमें 1.5 साल तक आपका कैश फ्लो कहाँ से आएगा, मतलब पहले मंथ का एक्सपेंस कहाँ से निकालोगे, फिर दूसरे मंथ का कैसा होगा, आपने और टीम बढ़ाई. ओके, टीम बढ़ाई तो उसका भी फंड कैसे आएगा. तो ये जो फाइनेंशियल फ्लो है वो 1.5 साल तक का आपको प्लान करना पड़ता है. ओके, ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग की बात है, फंड की बात है, आप कहाँ से ला सकते हो. देयर आर डिफरेंट वेज. आप खुद का फंड रखो, जो इनिशियली कुछ थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, बिकॉज जो, क्योंकि सेकंड ऑप्शन जो बताया बैंक है, बैंक भी आपको, आप खुद थोड़ा रखोगे तो आपको बैंक लोन देगी, उसके सामने आपको गारंटी भी लेनी पड़ेगी. तो बैंक लोन करके कर सकते हो. आप किसी इन्वेस्टर को पार्टनर बना सकते हो उस तरह से. और उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाना होता है, बिकॉज इफ इन्वेस्टर इज देयर या आप लोन ले रहे हो तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाना पड़ता है. तो ये सब चीजें हैं. देन अनदर एंड इज मशीन. मशीन का आपको प्लान करना रहेगा. अगर आईटी की बात करें तो हम कैसे मशीन लाएंगे, हम लैपटॉप से काम करना है या डेस्कटॉप रखने हैं. अगर जो कोई भी रखना है तो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा रखेंगे, आपका जो बिजनेस है उसमें क्या रिक्वायरमेंट है. अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो तो अगर डॉटनेट में हो या एंड्रॉइड पे हो या फिर ग्राफिक डिजाइन या एनिमेशन में हो, कहाँ पे हो. तो हर ये 3 रिक्वायरमेंट के कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है. उसके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा. अगर आप तीनों में हो तो आप कौन से कॉन्फ़िगरेशन में कितने मशीन लाओगे वो भी आपको प्लान करना पड़ेगा. एंड कई बार होता है कि लाइक हमें ज्यादा डिटेल में पता ना हो, तो इफ नीडेड यू शुड टेक एडवाइस फ्रॉम सम एक्सपर्ट. ओके, फिर ऑब्वियसली ये मनी की बात है, आप यू आर इन्वेस्टिंग अ बिग अमाउंट, तो सप्लायर अच्छा हो, अच्छा रेट दे, बेस्ट प्राइस दे आपको और अच्छी क्वालिटी दे और अच्छी सर्विस दे बाद में, वही आपके इन्वेस्टमेंट का कुछ निकल के आएगा. तो वो जरूरी है. नाउ वी कम टू द मैन पावर. The main M and important M is manpower. You need people for operations. You need people to use those machines. You need people to achieve the goal of the company. Manpower के लिए क्या करेंगे? Recruitment. So I'll show you one short clip. Can you hear? Can you guys hear? Yes, sir. Yes, sir. So let's do this tonight. Next person spells it. That's wrong. Not that wrong. Third person spells it. SQW. You realize that is not equally wrong. Which you could argue for this case is a better spelling for that. This series. Dictionaries know this because that's how they spell it phonetically. This one thing on the system was yes. And if they did those non-years, even on Sundays, better than others. So our brains are access to a wiring capable of running up with a
was your fault. You were an employer and two candidates come up looking for a job. And this is again a prime example. And you interviewing two candidates, and you say, hey, in the report I said, hey, next one has you. It's the highest supplier from it. The candidate said, oh, I was an architect. I made you an architect. For a while, I never realized all of the things I never know. The highest mark is 150 feet. After that, 55 feet long. It's just an explanation. So the person came up with the second. That person goes away, and this candidate walks in. But even the highest flyer on this building faces the low one. Looking at that. There's no one measures the shadow of that flyer on the ground. Measures the length of the proposing shadow, ratio of height to the shadows, comes up. I decided to I'm trying to get a person to figure it out. Even though it took that person measure, even though the person answer is not as precise. I'm trying to get this. That person knows how to use the mind. You know, let me not be used. Realize when you know how to think, it empowers you far beyond those knowable events. Okay, so you got an idea, but he gave some second example of hiring people, hiring a team. That's a recruitment. Okay, so recruitment is one of the most important part of entrepreneurship to build your company. And that because they are going to represent your company in front of clients, they are going to run your system, your business, your projects. Okay, and the thing is managing the teams. There's a last point that I would like to mention, that managing teams, being an entrepreneur, when you have a team, it is essential that you use your team essentially in a way that you can utilize the positive things and skills out of that people. The selection should be based on a smartness and not an experience only. Yeah, experience is required, it's a good thing, it's important. But it is not always like that the person who has more experience, that we should go for him. But because nowadays smartness is required, because if a person is smart enough, he will learn things by his own. So that is necessary for you. Okay, measure with revenue generation. You have team. You have to measure the output of your team. You have to measure with revenue generation, not only his speech, or not only the kind of work or the workload he is having. After all, it's about money, which runs the business, which runs your organization. Okay, so you need to measure with revenue generation. Who is generating what? This is important. Relieve underperformers. You have to be blunt. If you have a team and some team member or one or two person is not performing, they are underperformers, then it is like they can create issues in your organization and for you also. Because underperformer can generate a complaint from client side, cannot give output within a given time limit, which I have already mentioned that every task should have some time limit. Okay, so this can ruin your impression in front of client. So relieve underperformance. उनको बोल दो टाटा बाय बाय, sorry boss. Okay,
And you should have, last point, which is any employee can propose an idea. You should have work environment in your organization that any employee can propose his own idea, if because he knows everything, he knows operations, he knows your client. So अगर उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं, मतलब वो लोअर लेवल पे है तो वो कुछ बोल नहीं सकता। ऐसा वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए कोई भी बंदा अपना आइडिया दे, पता नहीं किसका आइडिया कितना बड़ा काम कर जाए। ओके, सो एनी एम्प्लॉय कैन प्रपोज एन आइडिया, दिस इज द थिंग। टास्क मस्ट बी एलोकेटेड विथ टाइम फ्रेम, एज आई मेंशन्ड, तो ही टाइम पे काम होगा। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मैनेजर, इफ यू हैव सम टीम लीडर, ओके, आईटी कंपनी में टीम लीडर होते हैं, मैनेजर होता है, फिर उसके नीचे टीम लीडर होता है, उसके नीचे डेवलपर्स होते हैं। तो आप जो टीम लीडर है, मैनेजर है, उससे आपको क्या एक्सपेक्टेशन है वो उसको लड़के बोल दो कि सी आई हैव हायर्ड यू, वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर एंड आई एम हैप्पी टू हैव यू, but I have this expectation from you, and expectations are so and so. So even he should aware that what he need to do and on what things he need to perform and focus. Okay, ask your employees about bad news, because you are always focused on your work, on your things, but many times it happens that your employees get some news from the market, क्योंकि कोई भी बंदा आपकी कंपनी के बारे में कुछ बैड न्यूज होगा या कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होंगे तो कोई ओनर को सीधा मुंह पे ज्यादातर नहीं बोलता, बट कहीं ना कहीं उनको पता चलता है आपके एम्प्लॉइज को, उनसे पूछो और ऐसा एनवायरनमेंट रखो कि वो जैसे आपको आइडिया भी दे सकते हैं वैसे आपको ये बात भी पता है। कई कबार कुछ लोग होते हैं कि मगर मैं बॉस हूँ, आई एम द ओनर, मतलब वो एम्प्लॉई कंपनी के बारे में कुछ भी भला बुरा बोल नहीं सकता, मतलब ऐसा सुना है मैंने। नहीं, आप जानने की कोशिश करो एंड यू आइडेंटिफाई कि मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स ने जनरेट किया है कि क्या है, या एक्चुअल में ये चीज है, ये प्रॉब्लम है चल रही जो आपको पता नहीं। सो आस्क एम्प्लॉइज अबाउट बैड न्यूज एंड belief should be there that they are doing the most important task of company. Your employee should have that belief that whatever I am doing for my company is the most important task of company. Okay, so ये मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक शॉर्ट एक स्टोरी है। एक कंपनी में जापान से एक डेलीगेशन आने वाला था और वहां की जो क्लीनर थे उसमें से एक लेडी जो वॉशरूम क्लीन करती थी और वो हैंडल करती थी, शी वाज प्रेग्नेंट, शी वाज 9 मंथ प्रेग्नेंट एंड इसलिए वो लीव पे थी। बट इसको पता चला कि हाँ ये कल जापान से डेलीगेशन आने वाला है और बहुत बड़े प्रोजेक्ट की बात चल रही, और किसी ने ऐसे वो फोन पे बात हुई और कैसा चल रहा है ऐसे सब, तो ऐसे सब बातें करते रहे, जापानी जाने वाले हैं, वो लोग तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और वो उनका ये बहुत ही क्लीननेस रखते हैं, बहुत ही पंक्चुअल होते हैं, वो सब उसको पता था। व्हाट शी डिड कि वो अगले दिन आके, वो उस दिन सुबह जल्दी आके उसने खुद ने पूरा वॉशरूम क्लीन किया, जो साहब की कैबिन का था वो भी, और जहाँ पे वो मीटिंग होने वाली थी वहां पे जो वॉशरूम था वो भी, और शी मेक श्योर कि दूसरे भी जो वॉशरूम है सब एकदम क्लीन हो। उसने वो वॉशरूम एकदम कांच जैसे एकदम क्लीन कर दिए थे। फिर बाद में हुआ यूं तो डेलीगेशन आया एंड तो जब मीटिंग्स प्रेजेंटेशन वो चल रहे थे, बट उन्होंने देखा हुआ था कि मतलब आए, मतलब कहीं पर भी होटल पे भी गए थे, कहीं पर बाहर अगले दिन घूमने भी गए थे और दूसरे दिन मीटिंग में आए थे। तो when they went for washroom, they feel कि ये कंपनी इतना ध्यान रखती है कि अपने वॉशरूम को भी कैसा क्लीन रखना, वो इम्पोर्टेंस उनके दिमाग में है। मतलब हाउ पंक्चुअल एंड हाउ परफेक्ट दे आर दिस कंपनी इज, ये इंप्रेशन उनको लगी और
प्रोजेक्ट उन्होंने दिया, प्रोजेक्ट देने के बाद उन्होंने एक बार बोला भी सही, अब ऐसा कि भाई हमने ये भी देखा, आपको प्रेजेंटेशन तो है, और हंसते हंसते ये भी बोल दिया कि हमने ये भी देखा कि आप वॉशरूम कैसे रखते हो, उसमें से भी आइडिया आता है, वी आर नॉट फूल, ऐसे करके बोल दिए। हुआ यूं कि कंपनी को रियलाइज हुआ कि मतलब ये दिस वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमें काम मिला। जब वो लेडी ने डिलीवरी की, उनको बेबी गर्ल हुई, तो कंपनी के कुछ लोगों ने मिलके, जो सीनियर थे, उन्होंने मिलके वो बेटी के लिए गोल्ड की रिंग्स दी गिफ्ट में, और कंपनी ने वो बच्ची का पूरी जिंदगी का एजुकेशनल एक्सपेंस कंपनी ने अपने सिर पे ली कि वी विल टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। तो ये चीज है, तो आपके एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि उनका काम इम्पोर्टेंट है। फॉर प्रोडक्ट और सर्विस, मेक अ स्ट्रेटेजी, plan for it, execute it, okay, and take care about perception of customer for quality and service। उनका क्या perception है आपके लिए, आपकी quality के लिए, आपकी service के लिए, वो ध्यान रखना जरूरी है। Marketing and sales आता है फिर, understand market trend, demand and supply, these are the some accounting things, but वो भी जरूरी है, and you can finalize your price। So guys, this is the thing. The last statement I have written is, entrepreneur is someone who has a vision for something and want to create. So guys, I hope you got some idea that what I wanted to share. Yes, sir. Okay. So Jill Jain is there. Okay, so this is how, and it's now we are now it's a time that for the complete to finish this session। तो ये चीजें हैं, आपको मैं यही बताऊंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप में ये सारी चीजें होती हैं, आपको ध्यान रखना है, ये सारी पॉइंट्स आप ध्यान में रखोगे, उसके हिसाब से आगे चलना है। और मैंने जो इनिशियली आपको जो पॉइंट्स बताए कि एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या होना चाहिए, अगर वो चीज आपके अंदर है, आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई विल सैक्रिफाइस दिस थिंग्स, आई विल गिव माय कमिटमेंट, आई विल गिव माय बेस्ट, आई विल बी अवेलेबल फॉर 24/7 and I will be there at any time for my client, and I will give my best and I will create my empire। ये सब चीजें आपके अंदर पैशनेटली है, then you can go for entrepreneurship। Thank you GLS guide, thank you। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you। Thank you so much, sir, for sharing your earned experience. I always said that experience is earned, and you have earned so much of knowledge and experience, and you have shared a lot with them, not only as a mentor, but as a friend also. So thank you so much. Thank you so much. Yeah, thank you, thank you all। Hoping the same kind of sessions in future also. Thank you so much. Thank you। Bye bye. Students, please don't leave. Students, attendance to be marked. Please don't leave. Hello. Okay, I'm calling your names. Just tell me your attendance. Your presence should be there. Fine. Attend किया है lecture to please. Vanshika, make it fast. You have next session lined up. Vanshika, okay. आप बोल तो भी जल्दी हो जाएगा लिखने से अच्छा। अक्षय, he is not there. अभय, सेहुल, आदित्य, कार्तिक, पार्थ। Present, ma'am. ओके। पराग सेवा प्रेजेंट मार्क कर दिया बेटा। पराग, इरफान Yes, sir. प्रेजेंट। अंकित
present. Nikhil, sorry, Prijita, Present, ma'am. present. Sanket, Yes, ma'am. Present. Sanket Gajjar, Present, ma'am. काय संकेत? Okay. Yash, Yash Gajjar, Yash, Janvi, Rakshit, Yes, ma'am. काय रक्षित? रौनक, नेहा, make it fast हो जल्दी. सौरभ, नवाजीश, नवाजीश, ये लिख के रखो प्रेजेंट किया तो फटाफट होते जाएगा. प्राची, Yes, ma'am. प्राची, ओके. Yes. अर्पित, प्रणव, प्रणव, रविराज, रविराज, सुभाष, केवल, शिवम, शिवम, दर्शन, प्रेजेंट मैम. दर्शन, प्रेजेंट मैम. पार्थ, हाँ, पार्थ, भाविन, प्रेजेंट मैम. भाविन, Present, ma'am. ओके. विनय, ओके, विनय, absent. अटेंडेंस होने के बाद आप लोग रीड कर सकते हैं. यश पटेल, यश पटेल, जयमिन, जयमिन, मयूर, मयूर, Present, ma'am. राहुल, धवल, धवल, भाविन, प्रभात, प्रभात राठौर, वरुण, वरुण, पंसरी, रक्षित, रक्षित शेषपाल. कौन रखा है रक्षित? रक्षित आओ तो जरा, हेलो तो बोलो. हेलो मैम. प्रेजेंट. रक्षित, व्रज, व्रज, राजमीन, अंजलि, अंजलि, सालिब, सालिब, रिद्धि, रिद्धि, जैनिल, जिग्नेश, जिग्नेश सोलंकी, यश सोलंकी, दीपक, दर्श सोनी, दर्श, दर्श नहीं है. वत्सल, Present, ma'am. निशांत, यश शून्यकट, अंजना, अंजना, संजय, संजय, दर्शक वेलानी. Okay, 8 new students can leave. ब्रजेश, आचार्य ब्रजेश, बी डिवीजन. लिख के रखो फटाफट से प्रेजेंट, खाली जल्दी जल्दी हो जाएगा. अनुज, अनुज बिरला, अनुज, he is not there. कृपा, AL02, कृपा, 04 present, 05 present, 06 present, 07 present, 08 present, 09 present, 10 Present, ma'am. झील. Present, ma'am. लिख के रख के सेंड करते जाओ फटाफट. BL11 प्रेजेंट, BL12, BL12 खुशबू, ओके. BL13 धारा, BL14, BL15, BL16, 16 का है हर्ष, अच्छा कैंसिल है वो तो. 16, 17, 18, BL18 जय, जय मेहता. BL18 का है भाई. BL19, BL20, BL20, BL21, 22, 23, 24, 25, BL25, Fiona, BL26, 27, 28, 29, 29,
30, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, Present, ma'am. 41, Present, ma'am. 42. हाँ हाँ निक्की प्रेजेंट मार्क कर दिया बेटा 42 43 43 कौन है किशन 43 absent 44 45 46 47 48 49 Present, ma'am. 49 प्रांशु Present, 50 मार्क कर दिया प्रांशु 50 51 52 52 शेख समीर 53 absent 54 55 56 57 57 57 नहीं है दीपांशु 58 58 निखिल 59 60 61 62 63 64 65 Present, ma'am. कौन है भाई पारस का 66 सोनिया सोनिया चलो anyone left okay you all can leave Thank you, ma'am. Bye. bye bye